Hello and welcome back. Greetings of the day. Today we are going to discuss the lecture 6 of our constitutional series of UPSC law optional paper. So, starting with it, the topic is public interest litigation, that is PIL. We had already discussed about the fundamental rights and its important case laws. The next topic, which is mentioned in our syllabus, is public interest litigation, which has been already asked so many times in our previous year questions in UPSC. So here are the three questions. I'll read it for you. In my previous video, I practiced the thing that I used to give you the overview of these answers, like question 1, this answer, question 2, this answer, question 3, this answer, after explaining you the whole thing. But now the scenario is changed. What you have to do is, after going through this video, you have to see these questions just the way in which I was telling you that these should be the subheads of your answers. You have to comment below all the three answers like this, in this pattern only. So by this I'll understand what things you people are getting, what improvement should be there, what kind of things I should add more, so that the answers, the subheads should be perfect. Language you can write, I know, but the thing is, you should know what question is asking from you, so you should answer those questions in the just by writing the subheads. We are not much into answer writing, but after getting known by the topic, after getting understand the topic, we should know that what should be the answer to this question. So the practice is changed. Still, I'll tell you what are the questions. Okay, so first question is, public interest litigation in India is judge led and even to some extent judge induced. Explain with the help of relevant case laws. This was asked in 2021. PIL is a tool to promote politics of the judiciary. Discuss. Public interest litigation has played a very crucial role in protection of environment in India. Elucidate and illustrate with the help of decided cases. Easy. Now I'll see in the next slide the basic things what actually PIL is. PIL means PIL basically stands for public interest litigation. It is a legal mechanism through which the courts in India permit individuals or organizations to file petitions on behalf of those who are unable to approach the courts themselves due to social, economic or any other kind of disadvantages. Basically it is a legal action जो कि कोर्ट में हम जाके इनिशिएट करते हैं for the enforcement of the general public or the public itself. यहाँ पे what it is done is, कोर्ट ऑफ इंडिया में कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको पेटिशन फाइल करने के लिए अलाउ किया जाता है, बिकॉज वो किसके बिहाफ पे करते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल जो कि कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते, या तो देयर आर सम एनी अदर काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस, और या तो देयर आर सम सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से वो कोर्ट नहीं जा पाते हैं. तो यहाँ पे एक तरह का जुडिशियल एक्टिविज्म से ये चीज़ निकल के आई है कि हम जस्टिस जो है वो सबको प्रोवाइड करेंगे. जस्टिस सबको प्रोवाइड करने का मतलब क्या हुआ, दैट वी आर गिविंग सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस टू एवरीबडी, और बेसिकली टू पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस. यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो यानी प्रॉब्लम कुछ ऐसी होगी जो पब्लिक की प्रॉब्लम होगी, काफ़ी सारे लोग उस प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, बट द थिंग इज कि वहाँ पे बेसिकली हमें एक्सेस जस्टिस किसको पहुँचाना है, टू द पुअर और मार्जिनलाइज्ड पीपल. पब्लिक देखो, अब पब्लिक इंटरेस्ट को इफ आई डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, इट इज सेड एज PIL. P means public, I means interest, L means litigation. Public interest means in interest of general public. In interest of general public is or the any section of society. L is litigation. Litigation means legal action or process. तो इसका नाम पड़ गया public interest litigation, right? Now basically अगर हम बात करें कि पहले होता था कि
ओनली द पर्सन जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है वही जा सकता है। ये एक ट्रेडिशनल प्रोसेस था। इस ट्रेडिशनल प्रोसेस को छोड़ते हुए, इस ट्रेडिशनल प्रोसेस को फर्दर लेफ्ट बिहाइंड करते हुए यहाँ पे पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स को जिससे कि वो दूसरों को जस्टिस दिला पाएँ, जस्टिस का रिड्रेसल करवा पाएँ, यहाँ पे उसको अलाउ किया गया। PIL की वैसे देयर इज नो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, यानी कहीं पर भी PIL को डिफाइन नहीं किया गया है। बट अब ये क्वेश्चन होगा कि फिर PIL आया कहाँ से? PIL आया है हमारे बहुत सारे अलग अलग जुडिशियल प्रेसिडेंट्स से। प्रेसिडेंट्स मीन्स जो पहले के जो भी केसेस हैं उनमें जो भी जजमेंट्स आए हैं दैट इज ट्रीटेड एज प्रेसिडेंट्स, और उनको जब हम फर्दर अपने लॉज में या अपने केसेस में रेफर करते हैं कि उस वाले केस में ऐसा जजमेंट आया तो दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंट्स। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ PIL। नेक्स्ट आता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्योंकि अभी तो हम फंडामेंटल राइट्स पे हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में इम्पॉर्टेंट है कि PIL की झलक हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इट इज़ नॉट एनीवेयर डिफाइंड। तो कहीं तो इसका प्रोसेस या कहीं तो इसको एनफोर्स करने का चीज़ें होंगी। सो देयर आर थ्री थिंग्स बेसिकली। फर्स्ट इज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है? वी ऑलरेडी नो दैट राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, पावर टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हमें सुप्रीम कोर्ट से मिलती है वहाँ पे PIL डिफाइन हो सकता है। ऐसी कोई अगर केस है, ऐसा कोई अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जो इशू है, जो क्रिएट हो रहा है, जो जनरल इंटरेस्ट में है, डायरेक्टली वो पर्सन जाके आर्टिकल 32 में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाके वहाँ पे केस फाइल कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पीपल। 226 सेम, अगर 226 है, अगर उसी तरह के राइट्स हैं बट 32 से ज़्यादा ब्रॉडर है 226, क्योंकि 32 में देर आर ओनली 5 रिट्स और 226 में देर आर 5 रिट्स प्लस एंड अदर रिट्स ऑल्सो, जो कि लीगल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट में भी यूज़ करी जा सकती है। तो बोथ फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स कैन बी कम हियर, people can come here for their violation of both fundamental or legal rights. Then next is डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 39A एंड 47। 39A क्या कहता है? 39A एंड 47 बोथ आर फॉर दी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस गोल्स। 39A बेसिकली ये बोलता है कि यहाँ पे हमें लीगल एड प्रोवाइड करना चाहिए फॉर द पीपल हु आर पुअर, या फिर जो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या जो एक तरह से अपना कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने में केपेबल नहीं है। तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना इज द मैंडेटरी फॉर द स्टेट। नेक्स्ट इज 47। 47 कहता है कि अगर देयर इज some problem in the level of nutrition या standard of living of its people, तो वहाँ पे state की ये responsibility है that it should raise the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health, और ये इसकी primary duties create कर देंगी। So article 39A and 47 in brief। अभी देखो we haven't discussed about directive principles yet, तो 2-3 lectures के बाद directive principles आएगा। You will be explained in brief about 39A 47 with the case laws। So अभी सिर्फ इतना जान लेते हैं that article 39 is this and article 47 is basically for improving the level of nutrition, standard of living, improve public health and prohibit harmful substances जो लोगों के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा सेलिएंट फीचर्स। सेलिएंट फीचर्स क्या हो गया? सबसे फर्स्ट दैट इज रिलैक्स्ड लोकस स्टैंडाई। व्हाट इज रिलैक्स लोकस स्टैंडाई? लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है जैसे मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो मेरा लोकस स्टैंडाई बनता है कि मैं केस फाइल करूं और किसी का नहीं। अगर मान लो मेरा कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ, आई एम नो मोर, या मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो मे बी मेरे क्लास 1 क्लास 2 हायर्स इनको अलाउ किया जाता है। बट लोकस स्टैंडाई यहाँ पे कैसा लोकस स्टैंडाई होगा कि मान लो कि कुछ इधर वाले लोगों का, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इनका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, एक पर्सन ये है, इसका कोई राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ, इसका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनता है। बट इफ दिस पीपल इज केपेबल ऑफ कि वो
कोर्ट में जाके ऑन बिहाफ ऑफ दीज पीपल केस फाइल कर सकता है, तो यहाँ पे उस चीज़ का अलाउ किया गया है दैट देयर इज रिलैक्स्ड होकर स्टैंड बाय। हो सकता है इस पर्सन का राइट इन्फ्रिंज ना हुआ हो, फिर भी फॉर दीज पीपल, क्योंकि ये जनरल पब्लिक है, ये ऐसी पब्लिक है जो पुअरर है या फिर ये मार्जिनलाइज्ड है या फिर ऐसी है जो जस्टिस नहीं ले पा रही है somehow फॉर एनी अदर रीजन, एनी अदर डिसएडवांटेज, तो ये पर्सन जाके इनके लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। सो एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अफेक्टेड पर्सन्स। नेक्स्ट आता है नो रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट और इंजरी। अब मैंने बताया पर्सनल इंटरेस्ट और इंजरी हो या ना हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट इज कैन बी बेस्ड ऑन लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स, एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन। ये इसको हम बोलते हैं एक ऐसा जुरिस्डिक्शन जहाँ पे कोर्ट के पास एक पावर होती है। बेसिकली ये वाला जो जुरिस्डिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी लेटर या किसी भी पोस्ट कार्ड या किसी भी टेलीग्राम को या किसी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल को इवन एज अ रिट पिटिशन फाइल कर देता है, मतलब उसको एज अ रिट पिटिशन को देख लेता है कि ये रिट पिटिशन है। दिस बेसिकली इसको लगाते क्यों हैं, यहाँ पे कोर्ट को प्रॉब्लम नहीं होती है एड्रेस करने में इश्यूज विच आर रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट, और जितना भी अगर कोई ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है तो उसको उन लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने में जो मार्जिनलाइज पीपल हैं या जो डिसएडवांटेज पीपल हैं, उनको एक ज़रूरी नहीं है कि वो एक फॉर्मल आके लॉ सूट प्रोवाइड करें या फॉर्मल लॉ सूट अप्लाई करें, पूरे प्रोसेस से जाएं। इस प्रोसेस को थोड़ा सा इन्होंने कम करने के लिए, जिससे कि उन लोगों तक जस्टिस पहुंच पाए एनी हाउ, तो वो कुछ लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल या टेलीग्राम को भी एज अ रिट पिटिशन मान लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम। इसका एम क्या होता है, फोकस क्या है? फोकस है to uplift the vulnerable groups, ensure transparency and accountability। मतलब कि यहाँ पे देखो बेसिकली फोकस है जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, जैसे पुअर हो गए, लेबर्स हो गए, प्रिजनर्स हो गए, विमेन हो गए, बच्चे हो गए, तो ये ऐसे लोग हैं जो वर्नरेबल ग्रुप्स के कैटेगरी में आते हैं। अब इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए इनके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, उसको रोक कर इनको रेमेडीज प्रोवाइड करके इनको फिर से वापस उसी जैसे बाकी सिटीजन्स अपने राइट्स ले रहे हैं, जस्टिस ले रहे हैं, वैसे इनको भी जस्टिस मिले, इस चीज़ के लिए ये PIL आया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत बड़ा रोल है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है जहाँ पे कोर्ट खुद ही प्रोएक्टिव रोल्स प्ले करती है, जिससे कि वो जस्टिस प्रोवाइड कर पाए फॉर द अदर पीपल। दैट इज व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन ऑफ PIL। एवोल्यूशन देखो 3 तरह से किया गया है। फेज 1 is around 1970s to 1980s। यहाँ पे this was called as access to justice। This first phase was called as access to justice। एक्सेस टू जस्टिस में क्या था, ह्यूमन राइट्स, प्रिजन रिफॉर्म्स, बॉन्डेड लेबर। यहाँ पे PIL को सिर्फ इसीलिए रखा गया था कि जो ऐसे पुअरर और जो ऐसे लोग हैं जो मार्जिनलाइज्ड है, जिनको हम अभी भी कोर्ट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं या पहुंच गए तो फिर अपने लिए केस नहीं लड़ पा रहे हैं, तो वहां के लिए PIL वाज स्टार्टेड। यहाँ पे कोर्ट ने इंटरवीन करना शुरू किया था, जैसे बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर जिनको हम कहते हैं, प्रिजनर्स मतलब जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, वो अपना ट्रायल ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ उनको लीगल एड नहीं मिल रहा, वो लॉयर नहीं रख पा रहे हैं, वो अपने को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट में। तो ऐसे कुछ लोग, चाइल्ड लेबर हो गया, ऐसे कुछ लोग जो इतने मार्जिनलाइज्ड हैं, तो वहाँ पे कोर्ट क्या करता था, इंटरवीन करता था इस सारे इश्यूज के, जो भी इन इश्यूज से रिलेटेड केसेस होते थे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे जस्टिस PN भगवती ने एंड जस्टिस VR कृष्ण अय्यर ने। सो दीज वर द वेरी फेमस पर्सनैलिटीज जो इस टाइम पीरियड में जिन्होंने बहुत की रोल प्ले किया इन द इंटरवेंशन, और इन लोगों को, जो मार्जिनलाइज्ड लोग थे जो हम अभी बात कर रहे हैं, इनको जस्टिस प्रोवाइड करने में।
बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जो जहाँ पे राइट टू लीगल एड की बात करी गई थी फॉर अंडर ट्रायल्स, क्योंकि वो अंडर ट्रायल में ही मान लो सजा 2 साल की है, अंडर ट्रायल रहते रहते 3 साल हो गए, तो अभी ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और जो मैक्सिमम सजा है उनकी, जो उन्होंने क्राइम किया है, अगर वो प्रूव हो जाता है, इनकेस अगर वो प्रूव होता है, अभी तो अंडर ट्रायल है, कुछ प्रूव नहीं हुआ, बट फिर भी अगर प्रूव हो जाता है कि हाँ ये सी पर्सन ने किया था, ही इज द एक्यूज पर्सन, तो अगर कन्विक्ट होता है तो भी 2 साल की सजा है, और आप देखो वो अंडर ट्रायल रहते रहते 3 साल हो गया है, तो दिस मीन्स कि कितना बड़ा गैप है। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ सिनेरियोज हैं, रियल लाइफ केसेस हैं कि जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का टर्म है जो हमारे लॉज में दिया हुआ है, उससे ज़्यादा वो पर्सन अंडर ट्रायल में कंप्लीट कर चुका है बिकॉज ऑफ नो लीगल एड प्रोवाइडेड। नाउ सेकंड इज 1990s के आसपास, 1990s के बाद कह सकते हैं, 1990s से अप्रॉक्स 2000, 1990 टू 2000, इसको हम बोलते हैं ब्रॉडनिंग स्कोप। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ था पीआईएल का स्कोप। यहाँ से अब कैसे बढ़ा, करप्शन आ गया, गवर्नेंस आ गया, इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट होने लगे, एजुकेशनल इश्यूज क्रिएट होने लगे, तो पीआईएल का एक्सपैंड होना जरूरी था। अभी तक कहाँ जा रहा था, सिर्फ फॉर द मार्जिनलाइज्ड पीपल, स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, फॉर द ह्यूमन राइट्स, फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स, बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, बट अभी क्या हुआ, सिनेरियो चेंज है, सिनेरियो चेंज बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, करप्शन, गवर्नेंस या फिर एजुकेशन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या स्टार्ट किया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस। सुओ मोटो, द वर्ड यू ऑलरेडी नो, सुओ मोटो मीन्स जहाँ पे कोर्ट खुद से ये कॉग्निजेंस लेती है किसी केस में, या किसी मान लो कोई मीडिया रिपोर्ट्स आई, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई जहाँ पे केस को, कोर्ट को ऐसा लगा कि ये केस ऐसा है जहाँ पे खुद से इंटरवीन करना ज़रूरी है, सुओ मोटो जाके उस इतनी इम्पोर्टेंस उस केस की फील हुई कि कोर्ट ने खुद ही अपना जुरिस्डिक्शन को प्रैक्टिस किया, उस केस को अपने पास लिया और फर्दर उसका ट्रायल स्टार्ट किया। तो यहाँ से कोर्ट ने देखना स्टार्ट किया कि ये भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे कॉग्निजेंस की ज़रूरत है। बहुत बड़ा केस इन्वायरमेंट का अगर मैं बात करूँ, एमसी मेहता वाले जितने केस हैं आर द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज इन पीआईएल। एनसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गंगा पोल्यूशन की बात कर लो, ताज ट्रेपीजियम की बात कर लो, ये सारे केसेस जो हैं ये फेज टू में लगभग ये सारे केसेस ही एग्जाम्पल बनेंगे। नेक्स्ट इज फेज थ्री। फेज थ्री आई फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स। 2000 ऑनवर्ड्स मतलब कि यहाँ पे मिसयूज होना स्टार्ट हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन मार्क आ गया। मिसयूज कहने का मतलब कि फ्रिवलस पीआईएल सब फाइल करने लगे फॉर गेटिंग फेमस और फॉर एनी अदर रीजन। तो यहाँ पे फेज थ्री ने जो फ्रिवलस पीआईएल मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए पीआईएल जिसका कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे जुडिशियल इंटरफेरेंस की ज़रूरत भी नहीं है, इस तरह के पीआईएल्स अप्लाई होने लगे। जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल कि जुडिशियल इंटरफेरेंस इन पॉलिसी डिसीजंस, ऐसे कुछ पीआईएल्स फाइल होने लगे जहाँ पे पब्लिसिटी हो जाए कि अरे इतना बड़ा केस फाइल कर दिया, इतना बड़ा केस जीत लिया, प्राइवेट गेन हो जाए। तो पीआईएल को बेसिकली अगर बताएं तो फेज थ्री में आफ्टर 2000 फेज थ्री में इसको पीआईएल से कह सकते हैं, पीआईएल से कन्वर्ट करके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से कन्वर्ट करके पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कर दिया गया। सो यू सी द डिफरेंस। अब एग्जाम्पल क्या होगा, किस तरह के ऐसे, क्योंकि केसेस तो फाइल हुए हैं तभी तो फेज थ्री बन गया, फ्रिवलेस पीआईएल्स फाइल हुई केसेस, जैसे मैं बताऊं क्रिकेट मैचेस को बैन करने के लिए पीआईएल, रियलिटी शोज को बैन करने के लिए पीआईएल, इस तरह के केसेस जो कि बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं किसी के राइट्स पे, कुछ ऐसे पर्सन्स जो हमारे प्रिजनर्स हैं, लेबरर्स हैं, विमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, ऐसे कोई भी इतना बड़ा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। भाई आपको नहीं पसंद है आप मत देखो, दैट्स इट, बट इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई करप्शन नहीं है, गवर्नेंस में कोई इश्यूज नहीं है, कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज नहीं है, तो फिर पॉइंट क्या है पीआईएल का, जस्ट फॉर गेटिंग दी पब्लिसिटी कि हमने इतना बड़ा केस फाइल कर दिया। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ पीआईएल। सबसे पहला स्कोप आ जाता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना भी, क्योंकि वी हैव अंडर आर्टिकल 20
One, we have a right to the good environment, right to pollution free environment, right to clean air and water. तो हमारे पास ये सारे rights present हैं. अब right to live in the सस्टेनेबल इन्वायरमेंट हमारा राइट आ जाता है. अब कोई भी ऐसा चीज़ हो रही है जिससे हमारे आसपास का इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है, कोई ऐसा केस है जैसे गंगा पोल्यूशन वाला केस था, तो वहाँ पे कानपुर के आसपास जो टेनरीज थी वो अपना सारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था वो गंगा में डंप हो रहा था. तो वो गंगा जो रिवर है वो हमारे ही सिटी के जस्ट बगल में है. तो वहाँ के जो लोग हैं वो अफेक्टेड थे इस चीज़ के कि टेनरीज का अगर इस तरह का अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर जाएगा तो इट विल पोल्यूट आवर वाटर, फिर क्लीन वाटर नहीं है हमारे पास. तो यहाँ पे ओवरऑल सबका इन्वायरमेंट सबका जो क्लीन वाटर वाला राइट था दैट वाज गेटिंग इन्फ्रिंज. तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये केस अप्लाई किया गया था. नेक्स्ट आता है प्रिजन रिफॉर्म्स. प्रिजन रिफॉर्म्स मैंने वही चीज़ बताई, राइट्स ऑफ प्रिजनर्स. अब इसमें वुमेन भी आ जाएंगे, चिल्ड्रन भी आ जाएंगे, एससीज एसटीज, सारे प्रिजनर्स तो कोई भी हो सकता है. तो सारे प्रिजनर्स को हम इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग मैन ऑल्सो. तो प्रिजन रिफॉर्म्स का मतलब ये हुआ कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, जो अभी तक अपना केस लड़ नहीं पाए हैं ड्यू टू सम और अदर रीज़न, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है, उनके पास लीगल एड नहीं है, तो वहाँ पे पीआईएल प्रोवाइड कर देते हैं और उनको लीगल एड प्रोवाइड करके उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं कोर्ट केसेस में. नेक्स्ट इज बॉन्डेड एंड चाइल्ड लेबर. बॉन्डेड चाइल्ड लेबर मतलब बॉन्डेड लेबर, बंधवा मजदूरी, बिना किसी मनी के आपको फ्री लेबर कराना. नेक्स्ट इज चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर मीन्स 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे, 14 ईयर्स से कम एज के बच्चे से कुछ भी फैक्ट्रीज या किसी भी प्लेस पे उससे काम करवाना. और वो जो बच्चा है वो 6 to 14 ईयर्स इज डिफाइंड फॉर आर एजुकेशन, दैट इज कंपल्सरी. वो ना करके इफ द चाइल्ड इज इन्वॉल्व इन दी लेबर एक्टिविटीज, तो उस बच्चे के लिए राइट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, अगेन द बेसिक राइट्स ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन. एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है. पीआईएल फाइल होगा तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है, बिकॉज ये सारी चीज़ हमारे जो डीपीएसपीज है उसमें मैंशनड है. फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो इन्फोर्सेबल भी है. डीपीएसपी तो सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है कि स्टेट को ऐसा करना चाहिए कंपल्सरली, इट्स मैंडेटरी फॉर स्टेट. बट फंडामेंटल राइट्स तो कंपलसरी भी है, साथ के साथ अगर किसी का राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो वो कोर्ट में भी जा सकता है. तो इसका मतलब गवर्नमेंट की आंसरेबिलिटी बनती है इन चीज़ों पे. इलेक्टोरल एंड पुलिस रिफॉर्म्स. इलेक्टोरल एंड पुलिस रिफॉर्म्स, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो भी जाके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के, मान लो कोई इलेक्शन या इलेक्शन से रिलेटेड या पुलिस से रिलेटेड कुछ ऐसे केसेस हो गए, कुछ ऐसे कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिससे लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज हो गए, तो भी पीआईएल फाइल हो सकता है. राइट टू हेल्थ एंड एजुकेशन, ये टोटली सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे है कि अगर राइट टू हेल्थ प्रोवाइड नहीं हो रही, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही, बहुत सारे लोगों का जनरल इंटरेस्ट अगर कह सकते हैं अगर उनका ब्रेक हो रहा है तो पीआईएल हम फाइल कर सकते हैं. नाउ कम्स मेरिट्स, यानी अच्छी चीज़ें क्या हैं. एडवांटेजेस. एडवांटेजेस तो बहुत सारे लिख सकते हो. I have mentioned here 4 major advantages. First is promotes access to justice, यानी कि democratizes कि हमें justice मिले. टूल फॉर सोशल चेंज. सोशल चेंज क्यों? सोशल वेलफेयर पे ध्यान देते हैं, क्योंकि जिनका बहुत सारे लोग हैं जिनका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, अगर केस चला जाता है कोर्ट में, जजमेंट आ जाता है, तो उन सबके राइट्स जो है उसके अगेंस्ट उनको रेमेडीज प्रोवाइड हो जाएंगी, फर्दर वायलेशन नहीं होगा. तो एक तरह का सोसाइटल चेंज आ गया, उन लोगों का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छा जस्टिस मिलेगा. Strengthens democracy and rule of law. Why rule of law? Because everything is just below law. Law is the supreme. Effective check on executive and legislature. Law बना दिया, ठीक है, law को implement करवाना है, ठीक है, but actually में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, so this is done by this. PIL फाइल होगा तो executive और legislature पे भी check लग जाएगा. न्यू jurisprudence का एक तरह से डेवलपमेंट होता है, जैसे राइट टू प्राइवेसी आया था वो इसी पीआईएल से निकल के आया. इन्वायरमेंटल लॉ आया वो भी पीआईएल से ही बेसिकली निकल के आए हैं. तो इस तरह के जो नए नए ज्यूरिस्प्रूडेंस, नए लॉज, नई चीज़ें निकल के आती हैं वो पीआईएल के थ्रू बहुत सारी हमें देखने को मिली हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का इन्फोर्समेंट हो जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का इन्फोर्समेंट इंडिविजुअल भी कर सकता है, और अगर बहुत सारे इंडिविजुअल्स इकट्ठा हैं तो पीआईएल भी फाइल हो जाती है.
अब देखो एडवांटेजेस हो गए, नाउ कम्स द डिसएडवांटेजेस और वी कैन से दैट क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है? पहला जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच का मतलब होता है इंटरफेयरिंग इन एग्जीक्यूटिव एंड लीगल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डोमेन्स, यानी यहाँ जो जुडिशरी है ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में इंटरफेरेंस के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। यूज्ड फॉर पब्लिसिटी, मैंने बताया पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, द गुड वर्ड आफ्टर ईयर 2000, जहाँ पे लोगों ने इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन समझना स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे कोर्ट का टाइम वेस्ट करते हैं, कोर्ट के रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं जस्ट फॉर दी पब्लिसिटी। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज बन जाता है कि हमने एक अच्छी चीज़ लेके तो आए मगर उसका मिसयूज होना स्टार्ट हो गया। कॉजेज जुडिशियल डिलेज, डिलेज क्यों हो जाता है? क्योंकि ओवर बर्डनड हो जाती है जुडिशरी, बहुत सारी चीज़ें, देखो एक का केस होता है वो ही इतना टाइम ले जाता है, तो अगर इतने सारे लोगों का जनरल केस होगा दो, अगर इतने सारे केसेस अप्लाई होंगे तो और ज़्यादा टाइम बढ़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। बट अब उन 100 लोगों का केसेस फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल केस में, तो भी दैट केस नीड्स लॉट ऑफ टाइम और वो ओवर बर्डन जुडिशरी हो जाती है। दैट इज वाई समटाइम्स इट इज डिले इन दी गिविंग द जस्टिस और डिलीवरिंग द जस्टिस। encourages नॉन सीरियस लिटिगेशन। नॉन सीरियस लिटिगेशन इसलिए क्योंकि लोग कह सकते हैं इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के केसेस लाना स्टार्ट कर देते हैं, फ्रिवलेस या पॉलिटिकल पीआईएल्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इसको नॉन सीरियस लिटिगेशन को एक तरह से बढ़ावा मिलता है फ्रॉम दी टॉपिक पीआईएल, क्योंकि लोकस स्टैंडा है नहीं। जो पर्सन अप्लाई कर रहा है वो तो सीधे सीधे कहेगा मैंने जनरल इंटरेस्ट में अप्लाई किया। अब लोकस स्टैंडा ही नहीं है तो फिर आप रोकोगे कैसे? केस तो फाइल हो जाएगा, जब हियरिंग होगी तब समझ में आएगा ना कि ये किस लिए केस अप्लाई किया था, वहां से वो केस कैंसिल होगा। सो दिस वेस्ट द टाइम ऑफ कोर्ट एंड दी रिसोर्सेज। नाउ कम्स एनक्रोचमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डोमेन। देखो अकाउंटेबिलिटी के लिए हमें ज़रूरत होती है दोनों की, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की, तो यहाँ पे उनका एंक्रोचमेंट भी हो सकता है। लोग इस चीज़ के बेसिकली कुछ लोगों के पास ऐसा एक मोटिव होता है कि हमें कैसे भी करके इस लॉ या इस चीज़ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो वो अननेसेसरी भी इंक्रोचमेंट के लिए पीआईएल्स अप्लाई कर देते हैं। फोरम शॉपिंग भी कई बार होती है, ऐसे फेवरेबल बेंचेस को चुना जाता है जो कि उनके फेवर में ही डिसीजन देते। तो यहाँ फोरम शॉपिंग का भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। एक केस था स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौफल 2010। इसमें क्या था? गाइडलाइंस ले करी थी टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पीआईएल, कि अगर मिसयूज ऑफ पीआईएल होता है तो क्या क्या गाइडलाइंस होंगी। दिस केस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट केस लॉज। इंपॉर्टेंट केस लॉज में फर्स्ट इज हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम फ्री लीगल एड का राइट प्रोवाइड किया गया था। फर्स्ट मेजर पीआईएल इज हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। पहली पीआईएल अप्लाई हुई, मेजर पीआईएल अप्लाई हुई, राइट आया, राइट टू स्पीडी ट्रायल प्लस राइट टू फ्री लीगल एड। Free legal aid was the additional thing. Free legal aid for the prisoners. नेक्स्ट है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। यहाँ पे सबसे पहली बार पीआईएल टर्म यूज किया गया था। इसके पहले पीआईएल कोई टर्म पता ही नहीं था क्या होता है, बस एक केस फाइल हो, कई सारे केसेस फाइल हुए थे इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, मगर नाम कुछ नहीं था। तो इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पहली बार एक टर्म यूज किया गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और यहाँ पे लिबरल लोकस स्टैंड जो मैंने बताया था अभी आगे, रिलैक्स लोकस स्टैंड उसको इन्होंने अच्छे से एक्सपैंड किया, अच्छे से उसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन जिसका खुद का कोई पर्सनल राइट इन्फ्रिंज ना हुआ हो फिर भी वो केस फाइल कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स। नेक्स्ट इज शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बेसिकली विमेन प्रिजनर्स की बात हुई थी, विमेन प्रिजनर्स के प्रोटेक्शन की। तो यहाँ पे विमेन प्रिजनर्स के कह सकते हैं उनका जो कस्टोडियल जस्टिस जो उन्हें प्रोवाइड होना चाहिए, उसके लिए शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज अ वेरी फेमस केस फॉर
this public interest litigation. Vishaka versus State of Rajasthan 1997, very famous case on the point that guidelines on sexual harassment. यहाँ पे PIL फाइल हुई थी कि अगर वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेस पे तो हमारे पास क्या चीज़ें हैं, तो दैट आर द गाइडलाइंस गिवन टू दी वर्क प्लेसेस कि कौन कौन सी आपको चीज़ें गाइडलाइंस हैं जो फॉलो करनी है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन जो आपके वर्क प्लेस से काम करती है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी सेक्सुअल हैरेसमेंट। नेक्स्ट आएगा स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत चौफाल। अभी मैंने वही केस बताया आपको एग्जाम्पल में, गाइडलाइंस टू प्रिवेंट मिसयूज की ऐसे कुछ गाइडलाइंस दे दिए गए थे कि जो हमने PIL प्रोवाइड किया है आपको, जो एक टूल है जिससे कि आप लीगल एड सब तक पहुंचा सको, आप जस्टिस सबको प्रोवाइड कर सको, उसका मिसयूज ना हो। इसी में एक दो केसेस और बताती हूँ। एक तो MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया के जितने केसेस है सब आ जाएंगे, ताज ट्रेपीजियम, ओलियम गैस लीक, गंगा पोल्यूशन, ये सब सीरीज ऑफ PIL से जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड की गई थी। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बॉन्डेड लेबर्स के लिए थी और स्पेसिफिकली अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि ये जो राइट्स ऑफ बॉन्डेड लेबरर्स हैं इसको 21 में हमने रिकग्नाइज करके फर्दर इसमें देखा था दैट दिस इज नॉट अलाउड। PUCL वर्सेस पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी एक केस है स्पेसिफिकली फॉर द राइट्स ऑफ बॉन्डेड लेबरर्स एंड जो मिनिमम वेजेस क्या होनी चाहिए इसके लिए PIL फाइल की गई थी। नेक्स्ट हमारा PIL रिलेटेड करंट अफेयर्स। PIL रिलेटेड करंट अफेयर्स मतलब अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या चल रहे हैं। तो पहला हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्डिक्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्डिक्ट में है कि अभी जो एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है एंड अगेंस्ट दी आर्टिकल 19(1)A वॉयलेट कर रहा है ये 19(1)A को, तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, कॉलिंग इट ओपेक एंड अगेंस्ट वोटर्स राइट्स टू इंफॉर्मेशन। तो ये दिस PIL इज द इम्पॉर्टेंट PIL इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शंस और इलेक्टोरल बोर्ड्स। यू शुड गो थ्रू द होल न्यूज इन डिटेल। मणिपुर वायलेंस PIL 23 का केस है। मणिपुर वायलेंस यू ऑलरेडी नो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर द गवर्नमेंट एक्शन ऑन ह्यूमन राइट्स। बहुत सारे PILs फाइल हुए थे इससे रिगार्डिंग, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से इंटरवेंशन किया। यहाँ पे देखा गवर्नमेंट का इन एक्शन इन कंट्रोलिंग एथनिक वायलेंस इन मणिपुर। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देखो जुडिशरी की मॉनिटरिंग चल रही है ओवर द एग्जीक्यूटिव, तो ऐसा इट कैन बी पॉसिबल अगर इस तरह का कोई वायलेंस होता है तो फॉर कीपिंग द चेक ये अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट इज पेगासस स्पाईवेयर PIL, ये भी राइट टू प्राइवेसी के लिए था। ये एक ऐसा स्पाईवेयर था जो आपकी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था, तो राइट टू प्राइवेसी को अपहेल्ड किया गया, अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। मेंस्ट्रुअल लीव PIL 2023 रेफर टू यूनियन गवर्नमेंट फॉर पॉलिसी डिसीजन। ऐसे कोई डिसीजन बनाना चाहिए जो फीमेल्स के लिए जो मेंस्ट्रुअल लीव्स है उसको अप्रूव कर दिया जाए, रीज़न यही हो, ठीक है। ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर था, यूनियन गवर्नमेंट को लेके कि कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजंस को लेके आया जाए। डीप फेक PIL 2023, इसमें डीप फेक्स को भी रेगुलेट कर। डीप फेक्स क्या होते हैं, जो हम फेक वीडियोस और ऑडियोज देखते हैं जिसमें ऑडियो वीडियो किसी और की होती है और मैनिपुलेट करके उसमें किसी और की वॉइस या किसी और की वीडियो को लगा दिया जाता है। तो डीप फेक एक तरह का ऐसा AI का यूज़ है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है फॉर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एक दो और चीज़ें हैं, जैसे अभी पता होगा नीट एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज थी इन 2024, तो वहाँ पे भी बहुत सारे PILs को फाइल किया गया था। इन दैट पेपर लीक्स वर बेसिकली चैलेंज यही था कि पेपर लीक्स हुए हैं और कैंसिलेशन हो रहा था, मतलब डिमांड करा जा रहा था कि नीट UG 2024 को कैंसिल कर दिया जाए। सो दीज वर सम ऑफ द बेसिक PILs जो अभी करंट में चल रहे हैं। इफ यू want you can follow more for more information on these current topics. So thank you so much. The PIL topic is done now and we will further cover legal aid topic in our further videos. So thank you so much. Like, share, comment, subscribe for more things.